Hi guys, I am Tanvi Sharma. Hi, I'm Shreya. Okay, so guys, this podcast is basically about our MBA journey और हमने इसमें क्या क्या सीखा since it's been 1 year of our MBA journey और हम लोग इस स्टेज पे आज हैं तो हम लोगों का एक्सपीरियंस और हमारा क्या हमारे अप्स एंड डाउन्स थे जो हमने फेस किया वी गोना शेयर एवरीथिंग विद यू गाइस. सो श्रेया पहले आप बताओ कि व्हेन यू फर्स्ट केम टू दिस कॉलेज व्हिच इज़ BML Munjal University, how did you feel? So, Tanvi, basically, when I joined the college, what I observed was the kind of friendly environment that radiated out of our Yes, university. yes. Our campus is so green and luscious that it Yeah. was bringing a bit of positivity at that time. And plus, the good thing that I felt about our program and in university in general, that they gave us a week to wind up Yeah. and cool down, Yes, to yes. settle in our campus, because we were not aware of whom we are meeting or connecting, and MBA is all about networking, right? Yes, yes, right. So it was a really good and interesting step to mingle with everyone, and it was kind of emotional because some were first timers Yeah. who were getting away from their family. Yes, yes. And for them, for few, it was like finally they had the opportunity Yeah. to be on their own. So it was kind of a mixed feeling that I felt all around me. And plus, sometimes in hostels also, we'll come. Okay, so you're talking about hostels. Okay, so have you felt something like कि अब ये मेरे रूम में होता है ना hostels में मेरी रूममेट है मुझे इसके साथ adjust नहीं करना है because the culture in our company was very good, like in our college was very good. We were getting to know about the people, the faculties were very good, the curriculum was very good. But did you feel somewhere the people here or the friends that I am around with are not good, or they are not even of my type or something? Did you feel that? Okay, so it is very subjective. So without being any sweet Hate. and hate and Towards sugar anyone. coat, I will say that people are not what they seem to be. Yes, this is very true. I totally agree with this statement. I guess like everyone in his or her life has faced this. She has also faced the same issue. Even I did. But I think these people don't matter to you. Okay, Yes. unless until we won't let them affect us, they don't matter to us. Right? But the thing is, everyone has their own set of challenges, and everyone has their own experience before settling in Thank the you. college. Thank you, Bhaiya. Thank you, भैया. जा रहे हो हाँ थोड़ी देर में निकल. Yes. So, before settling in college, the thing is, you don't know what kind of people you are meeting, Yes. or you're Right, getting right. to know. The thing is, you cannot predict the next move. You cannot have a blueprint. Like, the things you can take from this interview is that our experience, that the mistakes we made, you don't make. Yes. we got to hear like कि तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे वैसे लोग Yes. मिलेगा, बट जब तक तुम्हें वो एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, तुम्हें वो True. चीज़ें सीखने नहीं मिलेगी. एंड एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि एवरीवन नीड्स टू हैव देयर ओन हॉस्टल लाइफ. True. क्योंकि हॉस्टल लाइफ से जितना तुम सीख सकते हो Yeah, ना, this gives वो you a तुम्हें lot कोई नहीं of सिखा experience. सकता है. Yes. एंड जितना इम्पोर्टेंट हॉस्टल लाइफ है, उतनी ही अच्छे रूममेट्स मिलना भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. Right, right. क्योंकि एक टाइम के बाद जब तुम्हारी क्लासेस खत्म हो जाती है, तुम्हारा सब कुछ होता है, तुम अपना टाइम रूम में स्पेंड करते हो. Yes. और अगर वो लिवेबल और हैबिटेबल प्लेस नहीं होगा ना, तुम्हारे मेंटल पीस नहीं रह सकती. तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी. True, true. तुम खुश नहीं रहोगे, तुम क्रैंकी होगे, एंड एवरीथिंग विल सफर इफ यू डोंट हैव योर मेंटल पीस. दैट्स द की. Okay. So this is about the hostel and the friends and the people. Okay. Just tell me about your experience when you entered your first lecture, and here we are giving our first mock interview like after an year. So how do you feel? Like it's been a great journey, no, Shreya? We have learned a lot of new things. So we have been a lot of ups and downs. So how do you define your journey of MBA? So my MBA journey was quite a roller coaster, because for them
master's is something that they are currently pursuing. For me, master is something that I've already done. It's done and dusted from my end for one time. This is my second time. So I knew what kind of pressure. Your master's in International relations. international relations. Okay. So I knew what kind of pressure is there. The PPTs, the presentation, everything was something that I had experienced. But for MBA is that you need MBA is all You know, MBA, I believe, is totally different thing from anything. Like you are doing your undergrad, your schooling, but MBA give you different perspective, different, you know, different experience of everything. I would say, and this is something that you cannot, you know. I don't know how to express my MBA, but it's as you said, it's been a coaster ride for us. Every day is not like happy day, but every day is not like sad day. We have gone through like this. So And to it's, be very honest, Tanvi, the first day we had our lecture, it was raining. So we had to attend our class in online mode, if you yes, remember. yes, I do. Yeah. So yeah, MBA has, you know, it's not about like MBA is something that you will do like for the amusement. But I think MBA is something that has made me a person whom I was not before. It makes me a better version of myself. It actually made a better version of myself. It's truly an immense. I think I it's truly an immense experience for my life. MBA gives you a reality check that you need, at Yes. least for me. Like some in it's like more like a personal journey and personal growth. Maybe you have a sets of skill sets which you have not used to your full potential. MBA gives you a chance to improve yourself, Yes. to improve your skill sets, and even to grow more skills. प्लस अपने कॉलेज की मैं एक चीज़ तो अच्छी मानूंगी कि ये जो कोर्स है पे हमें फ्री एक्सेस मिला हुआ है जिसके लिए True, सारे true. पैसे दे के वो सर्टिफिकेट कहते हैं वी हैव फुल एक्सेस टू कोर्सेरा कोर्सेज वी कैन डू एन नंबर ऑफ कोर्सेज एंड ईजिली इट्स ईजिली एक्सेसिबल कोई लिमिट नहीं है कि तुम इतने ही कोर्सेज कर सकते हो वो हमारे ऊपर है हमें कितने सारे कोर्सेज करने हैं सो विच इज़ अ रियली प्लस पॉइंट ऑफ Yeah. आवर कॉलेज सो श्रेया, आई वांट टू आस्क यू समथिंग. अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो कोई और डिग्री में और एमबीए डिग्री में, सो आप कैसे करोगे? मतलब क्योंकि मेरे को तो ये पता है कि मैं जब से एमबीए कर रही हूँ मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ ये चीज़. तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे कोई और डिग्री करनी है तो आई वुड प्रेफर एमबीए रादर देन डूइंग एनी अदर डिग्री. सो हाउ वुड यू डिफरेंशिएट ऑल दीज थिंग्स? सो बेसिकली बीइंग वेरी कैंडिड मेरा ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड है ओके. ठीक है तो ह्यूमैनिटीज़ में इवन दो आई वाज अ ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट आई स्टिल स्टडीड इकोनॉमिक्स इन माय 11th and 12th standard. ओके. So basically I had a bit of background and knowledge for economics if we talk about. And in general, if I talk about every subjects give you a different perspective, Yes, different knowledge. Right. But if you want practical knowledge, practical exposure, and how things are done, then you should definitely go for an MBA. But the thing is कि आजकल हर कोई MBA कर रहा है. Yes. MBA is not something which is exclusive now. It's something which you'll find every second or third person is having an MBA degree. True. What makes you stand out or different is your skill set and how you're gonna present yourself. One important and key factor is that MBA is all about your personal branding Yes. and how you can sell yourself. चाहे तुम किसी भी डोमेन में हो, फाइनेंस में हो, ऑपरेशंस में हो, मार्केटिंग में हो, HR, whatever subject that you pick as your specialization. तुम्हें खुद को बेचना ही पड़ेगा इंटरव्यू में. नहीं बेच पाओगे तो तुम्हें कोई हायर नहीं करेगा. ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि I've gotten a lot of connections from like requests on LinkedIn. So they were asking कि दीदी which domain should I pick? In which domain the placement in BML Munjal universities are good? So क्या प्लेसमेंट्स को देख के हमें डोमेन लेना चाहिए या फिर जो इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, अभी रिसेशन चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो लोग सोचते हैं कि वाई वुड वी गो विद फॉर द मार्केटिंग, वाई वुड वी गो फॉर द एचआर में तो कोई स्कोप नहीं है. बट देयर कोर इज एचआर, बट दे डोंट वांट टू गो इन एचआर बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट्स. इज इट द राइट थिंग टू डू? No.
The thing is कि you never know कि what might be coming next. The thing is, for our senior batch, they thought that finance was the it subject. तो उन्होंने फाइनेंस में बहुत सारे बच्चे गए थे, बट उनकी जो सीनियर एक्चुअली हुआ ये था कि जो हमारी सीनियर बैच थी उससे एक साल सीनियर जो बैच थी उसमें फाइनेंस की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हुई थी. फाइनेंस वर द वंस हु गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ पैकेजेस एंड प्लेसमेंट. तो उन्होंने वो सोच के हमारे सीनियर बैच ने मैक्सिमम फाइनेंस में गया. बट द थिंग इज हमारे बैच में क्या हुआ है कि जो सीनियर बैच है उसमें मार्केटिंग की प्लेसमेंट ज़्यादा हुई थी और मार्केटिंग की डिमांड ज़्यादा हुई थी. तो हमारे बैच में क्या हुआ कि मार्केटिंग के बच्चे ज़्यादा हो गए. So basically the thing is that it is all up in the air. You would never know what's gonna happen. So this is something that I think you should stick to your core domain. If you're interested in HR, why would you pick up for the marketing? The thing is, whatever subject that you are picking, be completely sure about it. Yes. Because the thing is कि अगर तुम्हें अपना करियर तनवी फाइनेंस में बनाना है ना, Yes. मान लो अगर तुम्हें कॉलेज से ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं भी मिली तो तुम्हें उतना नॉलेज Exactly. और तुम्हारे पास उतना एक्सपीरियंस है कि तुम आगे किसी भी कंपनी में जाओगे तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है. अब तुमने फाइनेंस में किया, अगर तुम्हें प्लेसमेंट के लिए मैं मार्केटिंग में डाल भी दूँ, क्या तुम वो परफॉर्म कर पाओगे? No, I would not. Yes, right. तुम्हें ये क्या कहते हैं, नॉलेज भी नहीं होगी, तुम्हें इंटरेस्ट भी नहीं होगा. Yes. यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव, यू वोंट वांट टू गो टू वर्क. सो अब चलो ये तो बातें हो गई हमारे एक्सपीरियंस की, ये बातें हो गई हमने क्या सीखा MBA में और क्या हमें डोमेन लेना चाहिए. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी वी आर डूइंग MBA इन. सो हाउ इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ इज़ द फूड, हाउ इज़ द फैकल्टीज, लाइक हाउ इट इज़? So the thing is, mess food, I will say, is somehow edible. No. I totally disagree with her because her mother cooks a lot delicious food. That's why she's saying this. बट मेस का खाना बाकी सारे हॉस्टल से बहुत अच्छा है. हाँ, ये मैं मानूंगी कि बाकी के हॉस्टल्स में जो खाना बहुत अच्छा खाना है वो यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें 3 टाइम पनीर की सब्जी भी मिल जाएगी. तुम्हें अनलिमिटेड दाल रोटी सब्जी, तुम्हें जो चाहिए मेस में तुम्हें वो मिलेगा. और ये भी नहीं कि एक मेन्यू रहेगा, हफ्ते के 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन अलग मेन्यू होगा. एंड यू आर सर्व्ड, कोई तो सर्दियों में जैसे आपको सूप्स वगैरह मिलते हैं 1 एक्स्ट्रा. सूप्स भी विंटर्स में सूप्स होते हैं. हाँ, और समर्स में आपको ड्रिंक्स वगैरह मिलती है, लेमनेड मिलता है. सो लेमनेड, वैरायटी ऑफ फूड्स यू गेट टू हैव. मतलब मेरे को BML के खाने से तो कोई दिक्कत नहीं. खाने से किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर बच्चे मेस में नहीं खाते हैं, कुछ जो होते हैं उनके लिए ऑप्शन है क्यू कैफे और भी बहुत सारे अर्बन तड़का, स्मूदी. हम लोगों के संदीप भैया को कैसे भूल सकते हैं, लजीज. तो हमारे कैंपस के अंदर ही बहुत सारे फूड आउटलेट है. सिंस हमारा हॉस्टल टाइमिंग रात के 1:30 बजे तक है हमें हॉस्टल के अंदर आने के लिए, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड पॉइंट. क्योंकि हम 1:30 बजे तक कैंपस में कहीं पे भी घूम सकते हैं, बट कैंपस में अगर हमें वापस आना, अगर हम कहीं गए हुए हैं तो वो 10 बजे तक की इन टाइमिंग है फॉर MBA पीपल. और if I talk about the strictness in this college ना, this is not very strict for MBA. मतलब आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं. बट अगर आप ऐसा हो कि अगर आपको बाहर जाना है, सो यू जस्ट नीड टू ड्रॉप अ मेल टू योर वार्डन एंड ऑल एंड यू कैन गो. ऐसा कुछ नहीं है कि यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम दी लाइक डीन, फ्रॉम योर पेरेंट्स और फ्रॉम एनीवन एल्स. लाइक बहुत सिक्योरिटी में दे लेट यू फ्री, लिटरली दे लेट यू फ्री. आप कुछ भी कर सकते हो. द थिंग इज विद MBA दे थिंक दैट यू हैव द मैच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग कि तुम अपना अच्छा बुरा समझ सको. बैचलर्स के साथ आई वोंट सी द सेम, क्योंकि उनको पेरेंट्स की परमिशन, सबकी परमिशन लगती है बाहर जाने से पहले, और उनका इन टाइमिंग और आउट टाइमिंग भी हमसे अलग है. हमारा इन टाइम रात के 10 बजे कैंपस के अंदर है, उनका थोड़ा सा पहले है. तो वो एक चीज़ है. हम लोग कैंपस में फ्रीली 1:30 तक आराम से घूम सकते हैं, और हमारे जो फूड आउटलेट्स भी है वो पूरे रात चलते रहते हैं. यस, राइट. तो कभी आप पढ़ रहे हो, कभी आप अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहे हो, अगर आपको भूख लग गई तो आप आराम से हमारे फूड आउटलेट्स के मज़े ले सकते हो. और हमारा जो लाइब्रेरी भी है वो भी रात के 1:30 तक फंक्शनल है. Okay, so if I talk about the amenities and the like facilities provided by BMU, you'll get every sort of facilities. Like library तो बहुत common है, but auditorium भी काफ़ी अच्छा है. मतलब एक होते बहुत प्रीमियम लुक देता है हमारा ऑडिटोरियम, काफ़ी अच्छा. उसके अलावा आपको छोटे छोटे आउटलेट्स मिलते हैं. यूल गेट अ ह्यूज इंक्यूबेशन रूम जहाँ पे आप अपने स्टार्टअप का काम कर सकते हो. इनफैक्ट दी कॉलेज प्रोवाइड्स यू फंड. अगर आपका
एक्चुअली में काम बहुत अच्छा है. इफ़ यू आर लिटरली इनटू द स्टार्टअप, आप बात करिए और आपको बहुत मतलब they Encouragement support you in, मिलता है. yeah, encouragement, they support you in every way. And even if you have a very good idea, they will fund you as well. Yes, yes. तो काफ़ी चीज़ें. Our college is surrounded by plants. All over you'll get plants and all these things. You'll get a huge E2 cafeteria where you can sit chill with your friends. So if I talk about infrastructure, is very good. और It is decent, very हमारे good. कॉलेज में ही 2 ग्रोसरी स्टोर भी है. Yes. जहाँ से आप अपने चिप्स के पैकेट हो गए, मैगी को जो कुछ भी चाहिए आपको वो स्टोर्स में अवेलेबल है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे कॉलेज में Not one, guys, we have two. वो हमारे ऑफिस में ये ऑफिस बोल रही हो, कैंपस में प्रिंटिंग शॉप भी है. तो अगर So every salon. सैलून है, लॉन्ड्री है. So everything you get in one, under one roof. So I think this is perfect. और एक्चुअली ना एक ड्रॉबैक हमारे कॉलेज का है. द कॉलेज इज़ लाइक ऑन द हाईवे, सो यू वुड नॉट गेट मच प्लेसेस टू विजिट. आप बाहर जाके कहीं जा नहीं सकते हो, बट यू गेट आराम से. अगर आप आउट स्टेशन स्टूडेंट हो तो आप रोड क्रॉस करके बस में बैठ के अपने घर जा सकते हो. ये फैसिलिटी है आपके पास. और अगर बात करूँ तो उसके अलावा हमारे पास और क्या है तनवीर? एवरीथिंग इज सॉर्टेड. आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट द फैकल्टीज. नो, फैकल्टीज दे आर वेरी और इंपॉर्टेंट. हाँ, बच्चों को बहुत बार हॉस्टल में दिक्कत आती है कपड़े धोने की. तो हमारे हॉस्टल में वॉशिंग मशीन भी प्रोवाइडेड है. Yeah, everything. कि आप आराम अपार्ट से, फ्रॉम लॉन्ड्री यू विल गेट अ सेपरेट वॉशिंग हाँ, मशीन्स कि टू. आप आराम से Yeah, on every floor there are there is one वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव भी है. और सबसे बेस्ट बात बताऊंगा इस हमारे हॉस्टल में केटल, हीटर, Yeah, सब microwave, कुछ अलाउड है. everything. हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम ये नहीं ला सकते, वो नहीं ला सकते. हमारे हॉस्टल में सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस Yeah, अलाउड we है. don't have any restrictions of not taking your iron or not taking your straightner with you. You can bring whatever you want. मेरा हेयर ड्रायर, मैं हीटर भी लेके आ गई थी ठंड में, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी. आई बी ब्रूटली ऑनेस्ट. और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी होती है. और अगर इन केस नहीं हुआ तो वो वेल एडवांस में वो इन्फॉर्म कर देता है. अगर कोई मेंटेनेंस इशू हो तो वो सब चीज़ भी सॉर्टेड है. Okay, जैसा so, बता रही थी हमारे प्रोफेसर्स के बारे में. रुको, इससे पहले एक टॉपिक है. सो अभी हमने तो सारी अच्छाइयाँ कर दी. BML मुंजाल यूनिवर्सिटी, बीइंग BML मुंजाल यूनिवर्सिटी. सो डू यू थिंक इज देयर एनी ड्रॉबैक और आर देयर एनी ड्रॉबैक्स ऑफ द कॉलेज? कॉलेज के ड्रॉबैक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ड्रॉबैक्स, अगर ड्रॉबैक्स की बात इन जनरल की जाए तो हर जगह ड्रॉबैक्स तो होते हैं. यस. सो व्हाट डू यू फील? अगर मैं बताऊं तो यार एज सच, क्योंकि देखो ये अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता है कि जो भी प्लेसमेंट्स मे बी फॉर इन जनरल अगर बोलो तो प्लेसमेंट्स ही यहाँ का थोड़ा बहुत ड्रॉबैक हो सकता है. बट वो भी मैं मानती हूँ कि वो बच्चों के ऊपर है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छी कंपनीज भी आते हैं बट बच्चे ही, मतलब हम ही लोग उतने क्वालिफाई नहीं कर पाते या सही से अपने इंटरव्यू नहीं दे पाते कि हम उनको इम्प्रेस कर सकें. डू यू फील कि कॉलेज वाले कंपनीज उतनी अच्छी नहीं ला पा रहे हैं? वो तो सेकेंडरी चीज़ है कि बच्चे नहीं बैठ पाएंगे, बट कंपनीज नहीं आएगी तो बच्चे कैसे बैठ पाएंगे? कंपनीज, व्हाट आई फील कि हमारे कॉलेज में क्या होता है कि जो हमारी प्लेसमेंट कमेटी है वो लेके आते हैं कंपनीज को. बट समहाउ आई बिलीव कि जो एलुमनाई नेटवर्क है या फिर मुझे ऐसा लगता है हमारा एलुमनाई नेटवर्क तो स्ट्रॉन्ग है, बट द रीज़न बिहाइंड दिस वुड बी समथिंग एल्स. आई वॉन्ट ब्लेम द एलुमनाई नेटवर्क फॉर दिस. व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज दैट कि एलुमनाई कनेक्शन हो गया या फिर जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं उनके, मतलब हमारे कॉलेज में क्या है कि इंडस्ट्री टीचर्स ज़्यादा है. इंस्टेड ऑफ प्योर प्रोफेसर दे आर समवन इंडस्ट्री एक्सपर्ट. तो Yes. उनके कनेक्शंस हो गए या फिर जो जहाँ हमारे एलुमनाई कर रहे हैं, अगर उनके कनेक्शंस के थ्रू अगर हम कुछ कंपनीज अप्रोच कर पाए तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर एवरीवन इन जनरल. Okay, guys. So basically, the highest package this company has offered for our senior batch was 13.8 lakhs LPA, and it was from the market for the marketing domain. And the lowest package was around 6 lakhs, I guess, 6.5 lakhs LPA. So I would not think कि ये बहुत ज़्यादा फेयर है किसी के लिए, क्योंकि 13 लाख का पैकेज भी मार्केटिंग में मिल रहा है. What about finance and what about HR?
HR और फाइनेंस आर बिट स्ट्रगलिंग दिस टाइम Yes, फॉर right. द प्लेसमेंट्स. अगर सच्ची बोलूँ तो इस बार फाइनेंस के बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी थे अपने प्लेसमेंट के टाइम में. तो इस बार का रीज़न तो ये भी हो सकता है रिसेशन है. वो हाँ मतलब आई एम नॉट, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सीधा सिर्फ बच्चों के ऊपर या कॉलेज पे आ जाता है, बट इस बार का शायद हाँ. ग्लोबल इश्यूज काफ़ी हुए हैं. रिसेशन काफ़ी था, हम लोग नहीं इसको कवर अप कर पाए. प्लेसमेंट्स नहीं अच्छी इस बार नहीं हुई है, मैं खुद मानती हूँ इस चीज़ को. बट उसके अकॉर्डिंग भी हमारा प्लेसमेंट इतना भी खराब नहीं होता. Yes. मोर देन 90% ऑफ आवर बैच इज प्लेस्ड. which is a very good number. The average package is 8.5, which I think it is not like the ROI is not so good. बट तन्वी But एक this is worth चीज़ अच्छी है हमारे कॉलेज में कि 6 लाख से कम पैकेजेस वाले हमारे कैंपस में खुद ही Yes, नहीं अलाउ right. करते आना. And if you are getting a package less than 7 lakhs, so you are eligible to sit in 3 other companies too. So this is the plus point. Maybe बहुत सारे colleges offer करते हैं ये चीज़, but still I suggest हमारे college को, if someone is watching this video, I would suggest कि just I think networking is the only thing that you could bring companies to the college, ताकि थोड़ा सा प्लेसमेंट इंक्रीज हो, क्योंकि हमारा एवरेज कम से कम 10 लाख का जाना चाहिए, जो कि अभी इज़ अराउंड बिटवीन 8.5 to 9, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम है. और एक चीज़ ये है कि नेटवर्क करना स्टार्ट करो, चाहे तुम्हारे आसपास के तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारे कोई अंकल आंटी जो कोई भी हो, नेटवर्क करो बेटा, क्योंकि जब इंटर्नशिप का टाइम आएगा ना तो तुम्हें उसकी जरूरत So पड़ सकती है. this suggestion is not for the college, but this suggestion is for the junior batch that is coming, or anyone who is watching my video. अगर BML से MBA करने की सोच रहे हो, so this suggestion is for them, not for the college. हाँ, ये है कि तुम अपने पर्सनल नेटवर्क ना, Yeah. जिन मामी फूफा ये Yes. I जिससे भी believe बात personal हो रही है. connections actually work. So हाँ. just do not only depend on the internships by the college sides. Just do try to find new internships by your own. द थिंग इज हमारे कॉलेज ने अपने साइड से लेवल बेस्ट की थी कि सारे बच्चों की इंटर्नशिप उनके एंड से लग जाए. उन्होंने उसके लिए मेहनत भी किया था और बहुत मेजॉरिटी की कॉलेज के साइड से लगी थी. इनफैक्ट हम दोनों की भी कॉलेज के साइड से ही लगी है. And we are in the same company हाँ, बट of internship. बट ये है कि कुछ बच्चों ने खुद से भी इंटर्नशिप ली थी, क्योंकि मोस्टली वो फाइनेंस के ही बच्चे थे जिन्होंने आउटसोर्स किया था. रीज़न बीइंग कि फाइनेंस इंटर्नशिप की उस समय थोड़ी सा स्ट्रगल पीरियड चल रहा Yes, था, right. तो कंपनीज उतनी ज़्यादा अप्रोच नहीं कर रही थी. और यहाँ पे कुछ सिस्टम ऐसा भी है कि कुछ कंपनीज जो फाइनल प्लेसमेंट के लिए आती है वो इंटर्नशिप के लिए नहीं आती है, जो इंटर्नशिप के लिए आती है वो फाइनल प्लेसमेंट के लिए नहीं आती है. तो बी रेडी फॉर बोथ. जस्ट गिव योर बेस्ट इन योर इंटरव्यू. कोई भी इंटरव्यू के लिए ये मत सोचना कि अरे ये तो ऐसी ही कंपनी है, मतलब बेसिकली हम आपको सिर्फ इतना बोलना चाह रहे हैं, डू नॉट ट्राई टू टैंक द प्रोसेसेस, बिकॉज यू वुड नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन. और वहाँ पे तुम एक अच्छी के चक्कर में तुम बाकी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है. मैंने भी एक बार ट्राई किया था करने का, बट आई गॉट टू नो कि ये मेरी लाइफ की शायद सबसे बड़ी गलती हो सकती है. सो डू नॉट play with your internships or your placements. Do not do that. If you are getting a chance to sit in a company, whether it is offering 6 lakhs, 7 lakh, 8 lakhs, just take it. If you are getting less than 7 lakhs, you would get a chance to sit in another 3 companies as well. But just take it. You will have a backup for that. Just take the place. और तुम इंटर्नशिप भी ये मत देखना कि पेड है अनपेड है. yes. जो भी है जस्ट डू इट, क्योंकि वो तुम्हें कहीं ना कहीं एक्सपोजर ही दे रहा है. आज हम दोनों का मॉक इंटरव्यू हुआ था, तो इंटर्नशिप में तुम्हें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि तुम्हें फेस कैसे करना है. मेरा जो आज मॉक इंटरव्यू हुआ था उसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस वे रिलेटेड टू द इंटर्नशिप दैट आई डिड. Same goes with me. Yeah. तो उसके लिए तुम्हें अपना, जब तक तुम इंटर्नशिप में जाओगे नहीं, तुम खुद से नहीं देखोगे कि काम कैसा होता है. Basically, internships are only for the experience purpose. It is not for paid है, stipend है, नहीं है, पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा. Internships, अगर आपके पास 2 या 3 इंटर्नशिप्स है ना भाई, कंपनी हंसते हंसते आपको लेगी. मेरा आज मॉक इंटरव्यू हुआ है, आई हैव 3 इंटर्नशिप्स, और द रिक्रूटर, those who were sitting next to me, they were very happy कि मेरी 3 इंटर्नशिप्स हैं. So internships are only for the, और तीनों में से सिर्फ एक पेड थी, दो अनपेड थी. So they were very happy with the fact that I have 3 internships. So do not think of taking internship जो कि stipend वाली हो. Just take it as just gaining the experience, as to gain the experience. That is it.
इंटर और ये भी बोलूँगी कि इसके पास 3 एक्सपीरियंस था। मेरा ये फर्स्ट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस था, बिकॉज़ इससे पहले मैं स्टडीज़ में ही थी। और जो मेरा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है भी, वो इट्स नॉट समथिंग रिलेटेड टू ये कंपनी इन जनरल, वो मोर लाइक अ थिंक टैंक एंड रिसर्च बेस था। तो जो मैं बोलूँगी वो यही बोलूँगी, टेक योर वर्क सीरियसली, क्योंकि जो कुछ भी तुम सीख रहे हो ना, वो आगे जाके तुम्हें ही काम आने वाला है, वो किसी और को काम नहीं आएगा। नॉलेज इज समथिंग विच नेवर गोज इन वेस्ट, दैट्स व्हाट आई बिलीव। और मैंने आज तक देखा है, मैंने कुछ भी पढ़ा हो, कभी ना कभी किसी भी चीज़ में आगे, तुम किसी से बात कर रहे हो इन जनरल, तुम इंटरव्यू दे रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हारा इन्फॉर्मेशन काम आ yes, जाए। yes, right. यू नेवर नो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा एक्सपीरियंस। हमने सब कुछ शेयर कर दिया अबाउट द कॉलेज, अबाउट प्लेसमेंट्स, एवरीथिंग। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट एक फाइनल बात पे बात करते हैं, एंड देन वील रैप अप दिस वीडियो। हाउ डू यू फील, लाइक what do you feel about the faculty of our college? दे आर नाइस। They are nice. So, but many of the faculties has, they have left the college. या दैट्स द सैड That's पार्ट, yeah. कि कुछ उनका इंटरनल मैटर रहा होगा जिसके वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया। बट इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस कि हमें उनसे सीखने को मिला, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने हमें सिखाया, कहीं ना कहीं मेरे इंटर्नशिप में वो काम आ रही है, Yes, वेदर true. इट्स रिलेटेड टू स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग और वट एवर डोमेन। ओके, सो आई वुड से कि जो फैकल्टीज़ हमारे पास थे जब हम लोग अपना फर्स्ट ईयर कर रहे थे एमबीए का, जिन फैकल्टीज से हमने पढ़ा है ना, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वापस रिप्लेसमेंट में इतनी अच्छी फैकल्टी आएंगी। दिस व्हाट आई बिलीव। बट जो भी है, जैसा भी है, जो भी करिकुलम हम अब BMU फॉलो करेगा, आई थिंक उसके हिसाब से दे विल फाइंड द बेटर वन। और जो But भी है ये आगे, है, डिसहार्टन मत हो हमारी बात सुन के। ओ हाँ, एक चीज़ और ध्यान से कान खोल के सुन लेना, कि यहाँ पे मॉड्यूल सिस्टम चलता है, सेमेस्टर सिस्टम नहीं। तो Yes. एवरी 4 सेमेस्टर होते हैं मास्टर्स after में। every 2 months ठीक है। you have to get to on the new module. 4 सेमेस्टर्स होते हैं, 4 सेमेस्टर इज लाइक 1 सेमेस्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 मॉड्यूल्स। और तुम्हें यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। तो जो बेटा अच्छा सा ना ग्रुप बना लेना, क्योंकि तुम्हारा मार्क्स तुम्हारे ग्रुप के मार्क्स पे ही डिपेंडेंट है एक तरह से। Yes, क्योंकि right. हमारा फिजिकल एग्जाम और खुद की इंडिविजुअल मार्किंग बहुत कम है। मेजॉरिटी ऑफ द मार्किंग इज रिलेटेड टू ग्रुप, और हम दोनों एटलीस्ट 2 We were in every group. Yeah. So see here, what Shreya wants to share is कि जो हमारा प्रैक्टिकल होता है ना, वो हमारा उसका रेशो और जो थियोरेटिकल रेशो है वो बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस है। तो प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा होती है, हमारे असेसमेंट्स हो गए, यू हैव टू गिव दी प्रेजेंटेशंस, और ये सब ज़्यादा होता है। सो यू नीड अ ग्रुप फॉर दैट। सो और द मार्क्स ऑफ you as an individual depends on your group. So इस वजह से आपका अगर अच्छा ग्रुप होगा, so you'll get a better marks, और it reflects your CGPA also. और कभी भी अगर हो तो डिवीजन 1 में मत आना, क्योंकि हम दोनों डिवीजन 1 के, और हम दोनों, और डिवीजन 1 का ये कि सबसे कम मार्क्स ना हमारे डिवीजन को मिलते थे। हाँ, वो तो चलो अलग टॉपिक है कि हम लोग वैसे ही थे। चलो ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी वांटेड टू शेयर विद यू। होप यू लाइक इट। एंड अगर कुछ भी क्वेश्चंस आपके हो, दोज हु वांट टू जॉइन द BML Munjal University for their MBA can ask anything in the comment section down below. We would be like taking this as the opportunity to reply you back. We will be more than happy. We'll be more than happy, guys. Okay, bye. Ta-da.